to SSE Excel Science. I hope that you all are healthy, hearty and happy. आज है लास्ट डे ऑफ 2020, so I thought कि 2020 को बाय करने से पहले और 2021 को हेलो करने से पहले let's recall some of the good memories of 2020. Definitely because of the pandemic, 2020 will be remembered always. But it certainly had some good things to offer as well. It had a different impact on different people's lives in different way. So let's recall what all good it has given to us this year. This year is definitely is going to be one of the memorable one, especially for me, because of the very first channel, our science channel. So we thought कि क्यों ना rewind किया जाए and relive किया जाए all the good memories of this year. So we have prepared a very beautiful video for all of you with lots of love. So come, let's enjoy. Hello everyone, we hope that you all are healthy, happy and hearty. Myself Shivani Sukhija, Masters in Chemistry, Specialization Organic Chemistry. Welcome to my world of science to bring in light and color to your world. We formally and warmly welcome you to the SSE Excel Science channel. In physics, we talk about how the universe behaves. Okay, how the universe behaves, and in chemistry also deals with matter, but it talks about the nature of matter, कि matter बना किससे है, उसकी properties क्या है, उसका structure क्या है, उसका composition क्या है, और कैसे एक state of matter से दूसरे में आप बदल सकते हो. You must be wondering what am I doing here in this lush greens. I thought that we are talking about science, we are talking about nature, we are talking about the natural environment. Why not to begin with the environment, in the environment, taking the blessing of God. After all, it is one of the most beautiful creation and the gift of God to all of us. The serenity, the love, the peace it has, and the way it emotes, it's beautiful. So let's embrace science. ये नमक लिया और आपने इसको डाला. We can put more. If you see, नमक पूरा का पूरा डायरेक्टली नीचे चला गया. Until unless मैं उसको मिला रही हूँ, वो डायरेक्टली नीचे गया है. Why so? क्योंकि पानी के अपने अंदर कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल्स के बीच में. ठीक है, जब मैं ऊपर से स्टर करती हूँ या करूँगी तो वो दिस कुड बी वन ऑफ द स्टेट्स कि आपने पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आपके ये है. I know this is almost seems to be impossible, but nothing is impossible when it comes to science. कुछ भी हो सकता है कैसे भी. अगर आपकी सॉलिड स्टेट है और ये आपकी लिक्विड स्टेट है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कैसे जा रहे हैं हम, कुछ एनर्जी लगाकर. और अगर यहाँ से वापस यहाँ जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, प्रेशर लगाया, जुड़ जाओ, राइट. ओके, देन यू सी द फायर बॉल्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स. आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, जो हम टीवी में भी देखते हैं ना, कि गु एकदम से उड़ने ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट करके एकदम वो बॉल सी बनती है. एग्जैक्टली समथिंग लाइक दिस. सो दैट बॉल इज ऑल्सो वॉट, योर प्लाज्मा ओनली. So this is something which is very unique in the human existence, and especially in physics. It has never been observed because
every particle is behaving like one. Their energies are same, they behave like one, that they all are one. There is no difference between the two of them. सब एक ही है. Okay, so this is the water. You can see it is boiling. Okay, we can see the steam. Now when I put a lid over it or a glass plate over it, I mean a steel plate over it, what will happen? जो steam के vapors हैं आपके, देखो आप steam आपको दिख भी रही होगी जाते हुए थोड़ी सी space में से. तो जैसे हम अब इस lid को हटाएंगे, so you can see so many water molecules over it. See, so all these water molecules, your steam molecules have condensed and clumped to form water molecules on this plate. Okay. Now what I mean by lowering down the speed of light, can you feel the intensity? Speed of the light is around 1,86,000 miles per second. और somebody who people who cannot imagine with miles, मैं भी नहीं ज़्यादा कर पाती हूँ. So if you see in kilometers, it is around I think 3 lakh kilometers per second approximately. उतनी किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, जो मैंने 1 सेकेंड बोला उतने में 1 सेकेंड हो गया. उतने में लाइट ट्रेवल्स अराउंड 3 लाख किलोमीटर्स. इतनी स्पीड को it can put down to that of a bicycle. So you can imagine the atoms it must be having or the kind of power it has to slow down even light. So that's the beauty of it. कूलर और ये पंखे वगैरह भी नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे, अपनी ज़मीन पे ही रेगुलरली पोछा लगा के या पानी छिड़क के वो लोग सोते थे और उनका ज़मीन ठंडी हो जाती थी. इनफैक्ट अभी भी हो जाती है. तो एक्चुअली होता क्या है उसमें, फॉर एग्जांपल आपकी जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर हमने मान लिया कि 30 डिग्री सेल्सियस है. तो जैसे ही आपने उस पर पानी डालते हो, आप ये छिड़कते हो, तो उस पर क्या होता है कि ऑब्वियसली पानी उसकी सराउंडिंग से, ज़मीन से उसने हीट ली, एनर्जी ली और वो वेपर बन के उड़ गया. ठीक है. सो एक तो वो एग्जाम्पल हो गया इवेपोरेशन का. अब उसमें हुआ क्या उस इफेक्ट से कि क्योंकि उसने सराउंडिंग से, आपकी ज़मीन से हीट ली, जिसको सराउंडिंग कह लो, क्योंकि उसकी सराउंडिंग तो ज़मीन ही हुई ना. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल पहले उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि उसने उससे इसकी एनर्जी ले ली तो उसका टेम्परेचर कम होके अराउंड 20 आपका 27, 28 या अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस चले गया. तो पहले 30 था, अब 25 पर आ गया. तो कंपैरेटिवली कूलिंग हो गई. जब आप नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हो तो बेसिकली वो आपके वहाँ पे आपके सरफेस पे लगा तो करता क्या है कि जैसे ही आप लगाते हो तो वो इवेपोरेट हो जाता है. कैसे? आपके सरफेस से, यानी कि आपके हाथ से एनर्जी लेकर और आपके हाथ को कूल करके वो छोड़ जाता है. मतलब बेसिकली आपकी सराउंडिंग को, यानी कि हाथ को वो कूल करके छोड़ जाता है. राइट. ऑक्सीजन इनहेल करते हो, वो जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके डिफ्यूज़ होता है. जब कपड़े धोते हो ना, वो वाइट वाले जो आप नील डालते हो तो अपने पानी में 1 या 2 ड्रॉप मिलाते हो, खुद से ही वो मिल जाती है. सब इंक बोल सकते हो या क्लॉथ कलर, समथिंग कुछ भी बोल सकते हो. वो सिमिलरली लॉट ऑफ पीपल यूज़ फूड कलर. तो लिक्विड फूड कलर्स भी आते हैं. तो जैसे आप उसको 1 ड्रॉप डालते हो, आपका पूरा जो खाना बना रहे हो वो रेड हो जाएगा, नहीं तो पीला हो जाएगा. लोग पीला हलवा, पनीर टिक्का बनाते हैं रेड. दैट्स ऑल. हमारी पूरी बॉडी इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ओनली एंड देन वील कम टू द आउटर वर्ल्ड. देखो, सबसे बेसिक जो आप सांस लेते हो, यही तो मैं आपके सामने कर रही हूँ, बट दिस ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट इज गोइंग ऑन ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली. सो ब्रीदिंग इन एंड ब्रीद आउट इज ऑब्वियसली नॉट डिफ्यूजन, बट जो भी आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो वो जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके डिफ्यूज़ होता है, and then you are able to do and work on the different process. So that ऑक्सीजन जो आपके ब्लड में जाके डिजॉल्व होता है, that's the process of diffusion. So again, diffusion is happening here. Then जितने भी आपके अदर बॉडी के प्रोसेस हैं, आपका लिवर का हो गया, आपका किडनी का हो गया, आपका कुछ भी ले लो, हर जगह डिफ्यूजन ओनली इज़ वर्किंग. ये तो हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यू आर स्टैंडिंग हियर और आपके किचन से आपको आपके खाने की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है. सो व्हाट इज हैपनिंग, योर फूड पार्टिकल्स, वन स्टेट ऑफ मैटर इज मिक्सिंग विद द एयर पार्टिकल इन अनदर स्टेट ऑफ मैटर एंड इट इज रीचिंग आउट टू यू. So woohoo, we are able to make it. Okay,
तो जो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो आपके चारों बॉन्ड्स होते हैं दे आर एट 109 अराउंड 109 डिग्री, ठीक है। मिनट्स आप लोग नहीं समझोगे अभी कि 100, वैसे इट इज़ 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट आराम आप 109 डिग्री लो कि जो ये एक पर्टिकुलर है, देखो ये एक ओ है, ये एक एच है, ये ओ है, ये एच है, ये ओ है, ये एच है, ये ओ है, ये एच है, ठीक है। तो अगर आप देखो ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे होते हैं, तो दिस इज़ योर टेट्राहेड्रल शेप। अगर सबको दिख रही हो अच्छे से तो दिस इज़ योर टेट्राहेड्रल शेप कर रही हूँ। तो हो क्या रहा है अगर मैं उसको बर्फ़ रब कर रही हूँ, तो जो मेरा सराउंडिंग है जो कि हॉट है, जैसे मैं उस पर बर्फ़ रब करती हूँ तो बर्फ़ उस सराउंडिंग से जो गर्म है ऑलरेडी, उससे वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है पानी में बदलने के लिए। तो जैसे आप देखते हो जैसे उसमें रब करती है तो वो पानी में पिघलती जाती है, पानी टप 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 निकलता है। तो पानी टप 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 कैसे निकल रहा है? क्योंकि वो आपके पाम से हीट ले रहा है और आपके पाम को इंटरनली ठंडा छोड़ रहा है। माइंड मैप अगर आप मुझे एक शब्द में आपको बताना हो, बेसिकली एज यू ऑल नो दैट आई एम्फसाइज अ लॉट ऑन द इमेज फॉर्मेशन, लोगों के बारे में नहीं, एज यूजुअल जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उससे हमने क्या समझा है वो हम बेहतर तरीके से तभी जान सकते हैं अगर जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है उसको हम पेपर पेन में उतारें, या वाइस वर्सा अगर कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं कि मेरे दिमाग में वैसा का वैसा उतर जाए, तो मेक एन इमेज ऑफ इट, अ ड्राइंग ऑफ इट, एंड यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट, ठीक है। तो ये आपने देखा भी होगा कि अगर आप कुछ नोट्स जैसे बना के रखते हो, फिर उसको लर्न करते हो, सिर्फ उसको देखते रहते हो, दैट डजंट गो इन योर माइंड, एंड द मोमेंट यू जस्ट मेक sticky line points or just a diagram, you remember that diagram क्योंकि हार्ट ऐसा था, यहाँ से निकल रहा है, all that stuff. Simple, something that excites you, cold drink, okay? जब कोल्ड ड्रिंक जो आप बहुत ही मजे से जस्ट चुस्की लगा के पीते हो, बीट एप्पी फिज़, बीट योर स्प्राइट, बीट एनी अदर कोल्ड ड्रिंक, सो क्या है, आपको वो दिखती है कि ओके वो प्योर है या एक सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक है जो आप पी रहे हो, बट एक्चुअली में वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है. इट हैज़ शुगर सिरप, इट हैज़ carbon dioxide, it has artificial colors, it has a lot of other things inside it. So it is a mixture of lot of things. आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. इट इज़ अबाउट द बोर्ड्स अपडेट. अ लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस. क्या बोर्ड्स होंगे, क्या कैंसिल होंगे, क्या पोस्टपोन होंगे, कब होंगे, डेट शीट कब आएगी. अ लॉट ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स हैव and also we teachers have. So yesterday we all know that our education minister had a live session, a live webinar with the teachers and the students. He took up a lot of questions and a lot of things were answered finally. Actually for all of you people, finally I was waiting for this reduction wala thing. अब stress बिल्कुल मत लेना, जो भी बच्चे stress ले रहे हैं. Okay, you have sufficient time. Believe me, इतना time period काफ़ी है. अभी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा. अभी सेल्फ स्टडी करने के लिए इतना टाइम पीरियड काफ़ी है. यू कैन स्टिल डू इट, यू कैन स्टिल मेक इट. सो स्ट्रेस मत लो, ठीक है. वैसे भी कल से मैं एक स्पेशल सीरीज लाने वाली हूँ, तो उसके बाद तो बचा कुछ अभी स्ट्रेस निकल जाना चाहिए. आई एम होपिंग. सारियां नू गुरुपुरब दी लख लख बधाइयां. We pray for abundance of light, of happiness and good health for all of you. आपको पता है कि आज के दिन को मास्टर डे भी कहते हैं. कैसे? सिंपल. गुरु पर्व यानी कि मास्टर डे. सिमिलरली आज के दिन को प्रकाश उत्सव भी कहते हैं, यानी कि द बर्थ ऑफ लाइट. सो द अल्टीमेट थिंग इज एक्चुअली लाइट. सो वी थॉट ऑन दिस pristine and precious day, let us make a small effort to bring in light and color of knowledge and wisdom in all your life through the simplest way possible. So here we go. FS EXO Science presents Science Hot Shots. Why isn't there an eclipse every month? This is because the moon's orbit is tilted a few degrees north or south in relation to the earth. When moon does eclipse the sun, it casts two types of shadows on the earth. A smaller darker shadow known as the umbra and a larger shadow known as penumbra. इसी की वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं 3 टाइप की लूनर एक्लिप्स. एक होता है आपका टोटल लूनर एक्लिप्स, वन इज योर पार्शियल लूनर एक्लिप्स, एंड थर्ड इज योर पेनम्ब्रा लूनर एक्लिप्स.
अब ये तीनों कैसे कैसे होते हैं? टोटल लूनर एक्लिप्स यानी कि जब सन, मून और अर्थ अलाइन करते हैं एक ही लाइन में इन अ परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट ओरिएंटेशन एंड मून फॉल्स इन अम्ब्राज शैडो। जो टोटल लूनर एक्लिप्स होता है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट और स्ट्राइकिंग होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स कलर, बिकॉज जो आपकी ब्लू रेडिएशंस होती है जो अर्थ से निकल रही होती है उसको वो स्कैटर करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में विद द हेल्प ऑफ इट्स डस्ट पार्टिकल्स, एंड जो रेड लॉन्गर वेवलेंथ होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है शोइंग द रेड कलर ऑफ द मून। सेकंड टाइप यानी कि पार्शियल लूनर एक्लिप्स, जिसमें आपका सन, अर्थ और मून परफेक्टली अलाइन नहीं करते, विच मीन्स कि आपका मून ओनली पार्शियली लाइज इनटू द अम्ब्रा शैडो, और जो फेस अलाइन करता है अर्थ की तरफ वो आपको डार्क दिखता है, समथिंग लाइक दिस। So, our tagline: celebrate experiential learning. We hope that together we have a beautiful journey together ahead. Shower us with a lot of love and blessings, and we shall see you soon with the very first video very, very soon. Till then, be safe, be happy, and we pray good things for you. And do not forget to subscribe the channel for the latest updates. Bye-bye. So how was the video? Did you like it? एंड आपको कैसी लगी वीडियो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो एज यूजुअल, एंड ऑल्सो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. द इंस्टाग्राम हैंडल इज ऑब्वियसली डाउन बिलो. And before bidding goodbye to 2020, I would genuinely like to thank all of you for all the kindness that you have given, all the goodness and love and blessings that you have showered on all of us. Please continue to do so always, always and always. आप सभी को नई साल की बहुत 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 शुभकामनाएं. A very happy new year to all of you. So hello 2021. A new beginning, a new chapter to unfold, a new story to be told, lots of surprises to behold. So all my beautiful souls, are you ready to rock and roll?